welcome to our video. We are the student of the Sri Keja Polytechnic of the Bharuch. We are in the 6th sem. In the 6th sem, project was given. Our project is the generation of solar energy through solar panel using tracking system. Which on the base of the solar panel to generation of the energy. Before starting our project, I will introduce my group member. Myself, Prajapati Priyas from Electrical Department of the Sri Keja Polytechnic. My enrollment number is 196450309110. This project is done under the guidance of the Dharmil Vishal. Our project coordinator, whose name is Snehal sir, Snehal S.P. Kulani sir, and our head of the Department of the Electrical Engineering, whose name is Vaibhavi and Kulesh sir. મારું નામ પટેલ મોહમ્મદ હુજફ છે. મારો એનવાયરમેન્ટ નંબર 196450309085 છે. મેં શ્રી કેજે પોલિટેકનિકમાં ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટડી કરું છું. મારું નામ પ્રજાપતિ શિવ છે. મારો એનરોલમેન્ટ નંબર 196450309106 છે. હું શ્રી કેજે પોલિટેકનિકમાં ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અભ્યાસ કરું છું. મારું નામ પટેલ રાજ જગદીશ ચંદ્ર છે. હું શ્રી કેજે પોલિટેકનિકમાં ભણું છું. મારું એનરોલમેન્ટ નંબર 196450309090 છે. હું ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટડી કરું છું. મારું નામ રબારી નીરજ કુમાર ગોપાલભાઈ છે. હું શ્રી કેજે પોલિટેકનિકના ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ભણું છું. મારો એનરોલમેન્ટ નંબર 196450309109 છે. Our group introduction was finished. Let's we move to our next forward step. I will introduce about the working of our project. This is our hardware setup. This is our solar panel, and so on the solar panel there are the two modules. When we this solar panel we fit in the stepper motor. When we fit this stepper motor perfectly, so that there is no chance of any kind of break. When we start our project, give the supply of the 5 volt, the project gets start working. When the maximum rays are fall on the solar panel, rays are captured by the LDR module, and at that direction the module give the signal to the Arduino. The solar panel get rotated at that side. When we give the rays to the module at that direction, the solar panel get rotated and maximum rays get captured by the solar panel. As you can show that in the video, the flashlight was fall on the module at that direction. The panel get rotated. The main function of this panel is the rotation and capture the maximum of the sun rays. When the direction of the sun get changed, according through that the direction of the solar get also change. For that it is very efficient. That in video we show you the working of the hardware setup. So now we will move our forward step, that we can show you that the list of the components. About that which kind of list of the which component we use to make this project. यह हमारा जो है लिस्ट ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हमारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं. उसमें सबसे पहला हमने यूज़ किया गया है आर्डिनो, जो एक तरीके से सेंटर ऑफ ब्रेन ऑफ द प्रोजेक्ट कहलाया जाता है, जिससे सारे फंक्शन भी और कंट्रोल सारे किए जाते हैं विद सारे कनेक्शन के द्वारा, जिसका रेटिंग है 5 वोल्ट. और अब हम इसका आर्डिनो का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए रहे.
આર્ડિનો યુનો અને આર્ડિનો મેનો બે જાતના આવે છે. એમાંથી તમે કયો યુઝ કરો તે તમારી પર છે. આર્ડિનો યુનો જેમાં 14 ડિજિટલ પિન્સ આપેલી હોય છે અને 5 છે ને એડીસી પિન આપેલી છે એનાલોગ ટુ ડિજિટલ માટેની. અને બીજી 5 વોલ્ટની અને 3 ગ્રાઉન્ડની પિન આપેલી હોય છે જે ઉપર સાઈડ હોય છે. અને બીજી 1 થી 14 નંબરની જે આપણી ડિજિટલ પિન્સ હોય છે. જો તમારે જે બી એનાલોગ વસ્તુ હોય છે એનાલોગ પિનમાં કન્વર્ટ કરીને આપણે એને એડીસીમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ જે ડિજિટલ પિન પર આપણને મળે છે. હવે એ મેળવવા માટે આપણે લેપટોપમાં સોફ્ટવેર આવે છે IDE આર્ડિનો. એના દ્વારા તમે જેના પર 1 થી 14ની જે પણ પિન ઉપર તમારે આઉટપુટ જોઈતો હોય તમે તમારા સિક્વન્સ વાઇઝ તમે એમાં સેટ કરીને એ પ્રોગ્રામ તમારા આર્ડિનોમાં લોડ કરીને જે પણ વસ્તુને જે પણ વર્ક કરાવવું હોય તે તમે કરી શકો છો. અને તમારી પાસે ઓલરેડી ડિજિટલ પિન્સ હોય તો તમે એ ડિજિટલ પિન્સ ટુ ડિજિટલ પિન આઉટપુટ આપી શકો છો અને એનાલોગ ટુ ડિજિટલ બી આપી શકો છો. અને બીજી 5 વોલ્ટની 2 અને ગ્રાઉન્ડની 2 પિનો આપેલી છે જેનાથી બીજા જો આર્ડિનોમાંથી બીજા કોઈ રિલે કે કોઈ LCD કે બીજો કોઈ એક્સટર્નલ સોર્સ હોય તો જેને આપણે સપ્લાય આપવો હોય તો આપણે એમાંથી એ પિનમાંથી પણ આપી શકીએ છીએ. અને આર્ડિનોમાં 2 પોર્ટ્સ હોય છે, એક USB ટાઈપ પોર્ટ અને એક એનો 8 વોલ્ટ 9 વોલ્ટ 5 વોલ્ટ અને 11 વોલ્ટ. આ 3 ટાઈપના બીજા ચાર્જિંગ એના એક જાતનું એટલે પાવર સોર્સ આવે છે જે એક્સટર્નલ બી આપી શકાય છે અને લેપટોપમાંથી 5 વોલ્ટ પણ. अब हमारा दूसरा कंपोनेंट है जो वो डायोड है, जो उसका फंक्शन होता है जो रेक्टिफाई करता है AC सिग्नल इनटू DC में. और अब हमारा तीसरा कंपोनेंट है जो है कैपेसिटर, जो यूज़ फिल्टर सर्किट में यूज़ किया जाता है वो सिग्नल को स्मूथ करने के लिए, जिसका रेटिंग है 470 UF टू 100 UF. यह हमारा कैपेसिटर है. कैपेसिटर ऐसा पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है. इससे पहले कंडेंसर के नाम से जाना जाता था. एक कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से बना हुआ होता है, इंसुलेटर के द्वारा सेपरेट होता है. इस इंसुलेटिंग लेयर को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है. वैसे तो भी सभी कैपेसिटर में समान बेसिक प्रिंसिपल कंपोनेंट इस्तेमाल होता है, लेकिन मटेरियल की चॉइस और कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से अलग होती है. ये बहुत ही कॉमन एलिमेंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की. उदाहरण के लिए इस्तेमाल केवल AC करंट को केवल अलाउ करने के लिए किया जाता है और DC करंट को ब्लॉक करने के लिए. वह कुछ जगहों में एक स्मूथ पावर सप्लाई आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है. कैपेसिटर क्षमता होती है एनर्जी स्टोर करने के लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो कि जनरेट होती है कंडक्टर के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से. इसीलिए जब कोई कंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज दिया जाता है तब कैपेसिटर के एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता है, वहाँ दूसरी में नेगेटिव चार्ज. इसीलिए फिजिस्ट का मानना है कि एक कैपेसिटर वर्क करती है एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रोस्टैटिकली किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो को कैपेसिटेंस कहा जाता है. इससे फैराडेस में मापा जाता है. यह सबसे मेन पैरामीटर होती है कि कैपेसिटर को डिस्क्राइब करने के लिए. कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा तब होती है जब कंडक्टर के बीच स्थिति दूरी सबसे कम होती है और कंडक्टर का सरफेस सबसे ज़्यादा होता है. आइडियल कैपेसिटर केवल थियोरी में ही होता है, जिससे पूरी तरह से कैपेसिटेंस से भी डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में कुछ लिमिटेशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कंडक्टर और लीड वायर पैरासिटिक इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस पैदा करते हैं. वह स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी मिनिमम स्ट्रेंथ की लिमिट होती है, जिससे किसी डिस्क्राइब किया जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज से. साथ में इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा करंट लीकेज होता है, लीकेज करंट कहा जाता है. कैपेसिटर. अब हमारा चौथा कंपोनेंट है सोलर पैनल. सोलर पैनल का जो फंक्शन का मेन कार्य है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का
मेन कारण हेतुसार इस्तेमाल किया गया है। उसका रेटिंग हमने इसमें 12 वोल्ट डीसी और 3 वाट में लिया गया है। सोलर पैनल बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेलों का समूह होता है। इस फोटोवोल्टिक सेल को आपस में श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़कर एक प्लेट पर व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा उसके ऊपर कांच की एक केसिंग किया जाता है ताकि यह सेल बाहरी वातावरण के प्रभाव तथा पानी के प्रभाव से बचे रहे। जानने वाला हो कि सोलर पैनल कैसे काम करता है। सूर्य से निकलने वाली रोशनी में ऊर्जा के कुछ कण होते हैं जिसे फोटोन कहा जाता है। इस फोटोन की एनर्जी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या विद्युत को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर पैनल में बहुत सारे सोलर सेल लगे होते हैं। इस सोलर सेल को सोलर बैटरी भी कहा जाता है। सोलर सेल सिलिकॉन की परत से बना हुआ होता है जो कि एक अर्धचालक प्राकृतिक की धातु है जिसके साथ फास्फोरस और बोरॉन का इस्तेमाल भी किया जाता है। जब फोटॉन सोलर पैनल की सतह से टकराते हैं तब इलेक्ट्रॉन अपनी एटॉमिक ऑर्बिट से निकलकर सोलर सेल द्वारा उत्पन्न किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाते हैं कि इन्हें एक डायरेक्शनल करंट में खींचता है। इस पूरी प्रक्रिया में फोटोवोल्टिक प्रभाव कहा जाता है और कुछ इस तरह से हमें सोलर पैनल की मदद से बिजली की प्राप्ति होती है। और सबसे अच्छे से सोलर पैनल के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोलर पैनल क्या होता है और ये कैसे काम करता है? अगर नहीं तो आज का यह सुनकर आप जान ही लोगे। बिजली इंसान को ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लगभग सभी कामों को पूरा करने के लिए बिजली का आवश्यकता होती है, इसीलिए इंसान पर पूरी तरह से निर्भर है चुका है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तरह तरह की तकनीकें वे इस्तेमाल में ली जा रही है। इन्हीं तकनीकों में एक सोलर सिस्टम शामिल है जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करके हमें बिजली प्रदान करते हैं। सोलर पैनल, जिसे सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करके उन्हें ऊष्मा या बिजली में बदलने का काम करता है। इसलिए किसी भी तरह के ईंधन जैसे पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह सिर्फ सूर्य की रोशनी का ही इस्तेमाल करता है। सोलर पैनल के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोलर पैनल क्या होता है और ये कैसे काम करता है? अगर नहीं तो आज का यह सुनकर आप जान ही लोगे। बिजली इंसान को ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लगभग सभी कामों को पूरा करने के लिए बिजली का आवश्यकता होती है, इसीलिए इंसान पर पूरी तरह से निर्भर है चुका है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तरह तरह की तकनीकें वे इस्तेमाल में ली जा रही है। इन्हीं तकनीकों में एक सोलर सिस्टम शामिल है जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करके हमें बिजली प्रदान करते हैं। सोलर पैनल, जिसे सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करके उन्हें ऊष्मा या बिजली में बदलने का काम करता है। इसलिए किसी भी तरह के ईंधन जैसे पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह सिर्फ सूर्य की रोशनी का ही इस्तेमाल करता है।
हमारा दूसरा कंपोनेंट एलईडी यूज़ किया गया है, जो प्रोजेक्ट का स्टेटस बढ़ाता है कि ये प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है कि नहीं। एलईडी एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि लाइट एमिट करता है जब इलेक्ट्रिकल करंट उसके द्वारा पास किया जाता है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है। पहले की एलईडीज प्रोड्यूस करती थी केवल रेड लाइट, लेकिन आजकल के मॉडर्न एलईडीज प्राय सभी कलर के में प्रोड्यूस करने के समक्ष है, जिसमें शामिल है रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट। वह सभी के एडवांस से एलईडी टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल हुआ है। एलईडीज के लिए वो अब वाइट लाइट भी पैदा कर सकते हैं। एलईडी बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल की जाती है इंडक्टर लाइट के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इसमें बहुत से अलग एप्लीकेशन भी होती है, जिसमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक साइन, क्लॉक डिस्प्ले और फ्लैश लाइट। चूँकि एलईडीज बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट होती है और इसमें लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है, इसी के कारण इनका इस्तेमाल ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स के स्थान पर बहुत से जगहों में होता है। उदाहरण के लिए स्ट्रीट लाइट, कार के रेड लाइट्स में और बहुत से प्रकार के डेकोरेटिव लाइट में आप चाहो तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एलईडी जिसमें कि अक्सर बहुत से छोटे छोटे लाइट्स होते हैं सीरीज में, जो कि एक साथ मिलकर एक बड़ी डिस्प्ले तैयार करते हैं। इन एलईडीज की एनर्जी एफिशिएंट नेचर के कारण ही बहुत ही कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। दूसरे बल्ब के तुलना में वह इनकी लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर होती है। यही कारण है कि ट्रेडिशनल फ्लैट स्क्रीन एलईडी डिस्प्ले को हटाकर अब उनके स्थान पर एलईडी डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि एलईडी का इस्तेमाल बैक साइड के तौर पर किया जाता है और कंप्यूटर मॉनिटर टाइपिकल ज़्यादा ब्राइटर और आकार में थिनर होता है एलसीडी काउंटरपार्ट्स की तुलना में। हमारा दूसरा कंपोनेंट है एलडीआर। इसका मतलब होता है लाइट डिफेंडिंग रेजिस्टर। एलडीआर एक ऐसा डिवाइस है कि जिसकी रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कार्य है। इसलिए वे प्रकाश के प्रति संवेदनशील डिवाइस है। उन्हें फोटो कंडक्टर कंडक्टिविटी से यह सिंपली फोटो सेल भी कहा जाता है। एलडीआर पर जैसे जैसे लाइट यानी इल्यूमिनेशन का वेरिएशन होता है, वैसे वैसे एलडीआर अपना रेजिस्टेंस वेरी करता है। जब एलडीआर पर इल्यूमिनेशन नहीं होता तो यह काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जैसे जैसे एलडीआर के ऊपर लाइट डाली जाती है, इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे घटने लगता है। एक सेंसर के लिए यह सबसे ज़्यादा खास है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल मात्रा में बदलाव होना। रेजिस्टेंस के बदलाव को हम अपने अनुसार कॉन्फ़िगर करके अलग अलग एप्लीकेशन में उपयोग कर सकते हैं। एलडीआर के दो प्रकार हैं, इंट्रिंसिक फोटो रेजिस्टर और एक्सट्रिंसिक फोटो रेजिस्टर। एलडीआर एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल की एक पतली स्ट्रिप का बना होता है, जिसके दो टर्मिनल होते हैं। फोटो रेजिस्टर फोटो कंडक्टिविटी के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। फोटो चालक एक ऑप्टिकल घटना है जिसमें समग्रों की चालकता बढ़ जाती है जब प्रकाश सामग्री द्वारा अवशोषित होता है। जब फोटोन डिवाइस पर गिरते हैं तो सेमीकंडक्टर सामग्री के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन चाल बैंड के लिए उत्साहित होते हैं। घटना प्रकाश में इन फोटोन में सेमीकंडक्टर सामग्री के बैंड गैप से अधिक ऊर्जा होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप कर सके। इसीलिए जब प्रकाश में डिवाइस पर पर्याप्त ऊर्जा होती है तब अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन चलन बैंड से उत्साहित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में चार्ज वाहक होता है। इस प्रक्रिया का परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा चालू होता है जब सर्किट बंद हो जाता है और डिवाइस के माध्यम से बहाव शुरू होता है और डिवाइस का प्रतिरोध कम हो जाता है।
इसीलिए एलडीआर का सबसे सामान्य कार्य सिद्धांत है। एलडीआर का उपयोग लाइट सेंसर के रूप में किया जाता है। इसमें हमें कैमरा का प्रकाश मीटर में प्रकाश की उपस्थिति का अनुप्रयोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप में अलार्म क्लॉक, स्ट्रीट लाइट, लाइट इंटेंसिटी मीटर, बर्गर अलार्म का उपयोग किया जाता है। एलडीआर को ऑपरेट करने के लिए कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। एलडीआर का काम कॉस्ट और सिंपल संरचना होती है। अब हमारा दूसरा कंपोनेंट है सर्वो मोटर। जो सर्वो मोटर होता है जो वो सोलर का जो प्लेट को मूविंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल में मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। वैसे तो इलेक्ट्रिकल मोटर अपने कार्य प्रणाली के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। उन्हें में एक सर्वो मोटर है। यह साधारण मोटर से अलग होता है, हालांकि यह भी एक साधारण मोटर से सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सर्वो मोटर एक साधारण मोटर से रोटर पर एक विशेष व्यवस्था बनाकर बनाया जाता है। यह एक स्पेशल पर्पस मोटर होता है कि किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। अन्य मोटर से तुलना में सर्वो मोटर सभी जगह उपयोग नहीं किया जाता। जिस जगह पर धीमी गति की सही हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है वैसे जगह पर सर्वो मोटर का उपयोग किया जाता है। सर्वो मोटर को सामान्य मोटर के साथ कुछ अन्य कंपोनेंट के साथ कंबाइन कर बनाया जाता है, जैसे कि एसी, डीसी मोटर, पोटेंशियोमीटर, गियर सिस्टम और कंट्रोलिंग सर्किट। सबसे पहले मोटर की गति धीमी करने तथा टॉर्क को बढ़ाने के लिए गियर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। गियर बॉक्स को रिडक्शन बॉक्स भी कहा जाता है। इस रिडक्शन बॉक्स को सबसे पहले मोटर के शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। इस रिडक्शन बॉक्स का मुख्य कार्य मोटर की स्पीड आरपीएम को कम करने होता है। मोटर की स्पीड कम हो जाने की वजह से इसकी बल टॉर्क बढ़ा जाता है। रिडक्शन बॉक्स का शाफ्ट एक एकोडर या पोटेंशियल मीटर कहते हैं से जुड़ा हुआ होता है। सर्वो मोटर का प्रिंसिपल, जैसे हमने ऊपर जाना कि सर्वो मोटर एक स्पेशल पर्पस मोटर है जिसकी स्पेशल कार्य करने के लिए बनाया जाता है। जैसे माना कि किसी वस्तु को 60 डिग्री कोण से घुमाना है तो इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल सर्किट को 60 डिग्री घुमाने का संकेत माइक्रो कंट्रोल या आर्डिनो से दिया जाएगा और इस संकेत के अनुसार कंट्रोल सर्किट मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जोड़ देगा जिससे मोटर घूमने लगेगा। जैसे मोटर का शाफ्ट 60 डिग्री का एंगल पर पूरा कर देगा, वैसे मोटर को शाफ्ट से जुड़ा एकोडर या पोटेंशियोमीटर इस गति को इंगित करके और कंट्रोल सर्किट को पुनः एक सिग्नल देकर मोटर का शाफ्ट 60 डिग्री का रोटेशन पूरा कर लिया है और अब इसको मुख्य सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दो और इस संकेत को मिलते ही कंट्रोल सर्किट मोटर को मुख्य सप्लाई से तब डिस्कनेक्ट किया रहेगा जब तक कि उसका दूसरा संकेत माइक्रो कंट्रोल या आर्डिनो से नहीं मिलता। હવે હું તમને સોલાર ટ્રેકિંગ સિસ્ટમના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવીશ। સોલાર ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ એડવાન્ટેજ ફર્સ્ટ, સૌર કિરણોના સીધા સંપર્કમાં વધારો થવાને કારણે ટ્રેકર્સ તેમના તીર સમકક્ષકો કરતાં વધુ વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે। ટ્રેકિંગ સિસ્ટમના ભૌગોલિક સ્થાનના આધારે આ વધારો 10-25% જેટલો હોઈ શકે છે। ઇન્સ્ટોલેશનનું કદ સ્થાનિક હવામાન, અક્ષાંશ ડિગ્રી અને વિદ્યુત જરૂરિયાત એ તમામ મહત્વપૂર્ણ વિચારણાઓ જે ચોક્કસ સોલાર ઇન્સ્ટોલેશન માટે સૌથી યોગ્ય સોલાર ટ્રેકરના પ્રકારને પ્રભાવિત કરી શકે છે। સોલાર ટ્રેકર્સ ફિક્સ્ડ સ્ટીલ સિસ્ટમ માટે જરૂરી લગભગ સમાન જગ્યામાં વધુ વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે જે તેમને જમીનના ઉપયોગોને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે આદર્શ બનાવે છે। અમુક રાજ્યોમાં કેટલીક ઉપયોગિતાઓ સૌર ઉર્જા માટે ટાઈમ ઓફ યુઝ રેટ પ્લાન ઓફર કરે છે, જેનો અર્થ છે કે યુટિલિટી દિવસના પીક સમય દરમિયાન જનરેટ થતી પાવરને
પાવરને ઊંચા દરે ખરીદશે. આવી કિસ્સામાં દિવસના આ પીક સમયમાં વધુ પ્રમાણમાં વીજળી ઉત્પન્ન કરી ફાયદાકારક છે. ટ્રેકિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ આ પીક ટાઈમ પીરિયડ્સ દરમિયાન ઉર્જાનો મહત્વ લાભ મેળવવા માટે મદદ કરે છે. 5. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને મિકેનિક્સમાં ટેકનોલોજી અને વિશ્વસનીયતાની પ્રગતિ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ માટે લાંબા ગાળાની જાળવણીની ચિંતામાં ભારે ઘટાડો કર્યો છે. ગેરફાયદા. પહેલું, સોલાર ટ્રેકર્સ તેમના સ્થિર સમકક્ષો કરતાં થોડું વધુ ખર્ચાળ છે. બીજું, વિશ્વસનીયતામાં પ્રગતિ હોવા છતાં પરંપરાગત નિશ્ચિત ટ્રેક કરતાં સામાન્ય રીતે વધુ જાળવણીની જરૂર હોય છે. જોકે સોલાર ટ્રેકરની ગુણવત્તા કેટલીક વાર આ જાળવણીની જરૂર છે તેમાં ભૂમિકા ભજવી શકે છે. ત્રીજું, ટ્રેકર્સ નિશ્ચિત રેન્કિંગ કરતાં વધુ જટિલ સિસ્ટમ છે. આનો અર્થ એ છે કે વાયરિંગ માટે વધારાની ટ્રેન્ચિંગ અને કેટલાક વધારાના ગ્રેડિંગ સહિત સામાન્ય રીતે વધુ સાઇટની તૈયારીની જરૂર છે. ચોથું, ખાસ કરીને સોલાર ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ વાતાવરણ પર આધાર રાખે છે. વાદળછાયા વાતાવરણમાં તે વધારે પાવર ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી, તેથી પાવરનો વ્યય થાય છે. 5. સોલાર ટ્રેકર સામાન્ય રીતે એવી આબોહવામાં ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે જેમાં બરફ ઓછો હોય છે અને તેઓમાં ગરમ આબોહવામાં વધુ સક્ષમ ઉકેલ બનાવે છે. ફિક્સ રેકિંગ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ કરતાં સખત પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓને વધુ સરળતાથી સમાવે છે. આ સિસ્ટમ અને બનાવટ માઇક્રો કંટ્રોલરના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે. 7. આનામાં એનર્જીને સ્ટોર કરવા માટે જે બેટરી વાપરવામાં આવે છે તેની કિંમત વધારે હોવાથી તેમાં ખર્ચ વધારે થાય છે, તેથી આ પૈસા એ લે. હું તમને ગુજરાતમાં આવેલા સોલાર પ્લાન્ટની માહિતી આપીશ. આપણા ગુજરાતમાં ઘણા બધા સોલાર સિસ્ટમ પ્લાન્ટ છે, જેમાંથી ટ્રાયકલ સોલાર એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જે સુરત પાસે છે, કિસાન સોલાર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જે બરોડામાં આવેલું છે, યુએન એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને નોર્થ ગ્રીન એનર્જી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જે આણંદમાં આવેલ છે. ટાટા પાવર રિન્યુએબલ ગુજરાતમાં 300 મેગાવોટનો સોલાર પ્લાન્ટ કમિશન કરે છે. ભારતની સૌથી મોટી સિંગલ સોલાર એક્સિસ સિસ્ટમ છે. સિસ્ટમ ડિઝાઇન કરવાની છે. હવે હું તમને સોલાર ટ્રેકિંગ સિસ્ટમના ફ્યુચર સ્કોપ વિશે જણાવીશ. સિસ્ટમને ડિઝાઇન કરવાની જે આપમેળે સૂર્યની સ્થિતિને ટ્રેક કરશે અને તે મુજબ સોલાર સિસ્ટમમાંથી મહત્તમ આઉટપુટ મેળવવા માટે સોલાર પેનલની દિશા બદલશે. બીજું, જે આ સાથે બંને GSM અને GPS મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરીને સોલાર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ બનાવવામાં આવે છે. ત્રીજું, સોલાર ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ અમલમાં મૂકવી જે સૂર્યમંડળના કાર્યક્રમના વધારાથી મળે આપમેળે સૂર્યની સ્થિતિને ટ્રેક કરે છે. ત્રીજું, GSM સુવિધા સિસ્ટમ પૂરી પાડવામાં આવે છે જે વપરાશકર્તાને વિશ્વમાં ગમે ત્યાંથી સિસ્ટમનું નિરીક્ષણ કરવા માટે मदद करे છે. आज मैं आपको रामापुर यूनिवर्सिटी जो सतह पानी की सतह पर तैरता हुआ जो सोलर प्लांट है उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ. जैसे कि आप जानते ही होंगे कि दिन बर दिन बिजली की उत्पादकता कम होती जा रही है और उसकी मांग बढ़ती जा रही है. ऐसे ही ये सब जानकर हमारे इंजीनियर्स ने देखा कि बिजली की उत्पादकता कम होती जा रही है और बिजली की मांग बढ़ती जा रही है. उसके कारण हेतुसर हमारे इंजीनियर ने ऐसा सोचा कि हम जो नए सोलर टैंक सिस्टम प्लांट हम बनाए, पर उनने कुछ इससे बढ़ाकर नया कुछ सोचा कि जैसे कि हम पानी हमारी अपनी ज़मीन को बचाकर हम इससे अच्छा है कि पानी पे तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाए. तो इंजीनियर ने सोचा कि हमारे तेलंगाना के अंदर हमारे रामाकुंडल गांव के अंदर 450 एकड़ की ज़मीन में बचाकर उन लोगों ने उसको पानी के अंदर तैरती हुई सतह पे पानी पे सोलर पैनल बिछाकर वहाँ पे सोलर पैनल का प्लांट बनाया है. वहाँ पे ये 100 मेगावाट का प्लांट है जो कि 37.5 का बिजली का उत्पादन देता है और आज के दिन में इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल भी चालू किया गया है.
कि इसके अंदर ये प्लांट ऐसे स्थित किया गया है कि जैसे कि 150 जिससे कि ये प्लांट इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे कि जो प्लांट है उसके बाजू में से वहाँ पे 150 प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है, तो भी वो प्लांट को या पैनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो पानी के अंदर जो पानी है वहाँ पे यानी इतने 10 मीटर ऊंची भी लहर आ जाएगा तो भी वो पैनल को कुछ हो भी नहीं पाएगा, तो उससे पैनल को कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। ये रामापुरम का तेलंगाना में स्थित ये जो सोलर प्लांट है, जो ये हमारे भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला पानी की सतह पर तैरता हुआ सोलर प्लांट है, जो कि ये 450 एकड़ की ज़मीन को बचाकर वो पानी में तैरता हुआ स्थित है, जिसमें कि ये इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर, ब्रेकर और कन्वर्टर है जो वो भी पानी की सतह पर ही बनाए रखे गए हैं। इसके अंदर 4,48,000 सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है, वो 30 मेगावाट की पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि उत्पादन सबसे ज़्यादा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादन हो सके। आने वाले साल में भारत ने यह अनुमान लगाया है कि 2040 तक 40% से 50% ऊर्जा जो है कि सोलर पैनल से ली जाएगी और उससे उत्पादन भी की जाएगी। अब जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो हमारा जो सोलर ट्रैकिंग सिस्टम है उसका कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए कि वो जो फिक्स पैनल से था, तो ये फिक्स जो फिक्स स्ट्रक्चर होता है जो सोलर पैनल का, कि हम जो ये 0 डिग्री के साउथ पे हम सेट करें तो वो एप्रोक्स वो कुछ जो आउटपुट में नो इंक्रीज हो पाएगा, और इसको 20 डिग्री के साउथ पे सेट के रखे तो वो 7.5% आउटपुट इंक्रीज होगा। और हमने इसको सिंगल एक्सिस में सोलर पैनल को सेट किया है 20 डिग्री पे, तो वो 20% इंक्रीज होगा, और 40 माइल सिंगल एक्सिस में 40% इंक्रीज होगा, और ड्यूअल एक्सिस सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में भी 40% से बढ़ सकता है। तो फिर हमने ये जो सोलर पैनल ट्रैकिंग सिस्टम बनाया तो उसमें कुछ फ़ायदे हैं, तो उसका भी कुछ रेट यानी बढ़ सकता है पैनल का, तो कॉस्ट ऑफ पैनल भी बढ़ेगी। जो सिंगल एक्सिस में उसकी प्राइस 18.6% बढ़ सकती है जो पैनल की, और ड्यूअल एक्सिस में 23.6%। जितनी खर्च बिजली और डीजल चलाने से आता है उससे कम खर्च सोलर पैनल से चलाने में आता है। दिन के समय में सुबह से 10 बज के शाम के 5 बजे तक आधा चक्कर सोलर पैनल से चल सकती है। प्रतिदिन लगभग 1,000 रुपये की कमाई होती है, बिजली पर निर्भर नहीं। यहाँ 10 HP और 3 हॉर्स पावर और 3 फेज को AC मोटर है, जिससे आटा चक्की और चूरा मिल चलते हैं, जो दिन एक समय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आटा चक्की सोलर पैनल से उत्पन्न हुई बिजली से चलते हैं। रात के समय में भी लगभग चक्की चलाने है तो चेंज ओवर की मदद से सरकारी बिजली पर बदल दिया जाता है। यहाँ पर लूम सोलर माइक्रो क्रिस्टलन सोलर पैनल लगाए के कारण बादल और कम रोशनी वाले मौसम में भी चलता रहता है। सोलर पैनल सूर्य की रोशनी से DC बिजली बनाता है और VFD की मदद से इस बिजली को AC बिजली में बदल देता है। सोलर पैनल को ऐसी जगह पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पूरा दिन सूर्य की रोशनी आती रहे। सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन पैनल स्टैंड पर मजबूती के साथ कसा जाता है और सोलर वायर की मदद से NCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक लाया जाता है। यह हमारा प्रोजेक्ट का ब्लॉक लाया गया है। मेन कंपोनेंट हमारा आर्डिनो है, उसके साथ हमने लिया गया 5 वोल्ट इनपुट सप्लाई लिया गया है, 2 LDR सेंसर्स, 1 सर्वो मोटर और सोलर पैनल। इन सब का कनेक्शन हमने आर्डिनो के साथ दिया है, जो सेंटर ऑफ द ब्रेन कहा जाता है प्रोजेक्ट का। जैसे कि आप जानते हो कि हमने 5 वोल्ट सप्लाई दिया है इनपुट तरीके से, तो हमारा प्रोजेक्ट का वर्किंग है ना
महीने तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि हमारे जो दो LDR है जो सोलर पैनल के साइड पे फिट है, तो वो जो सोलर रेस फॉल ऑन द सोलर पैनल तो उसको उस एंगल को ट्रैक करेंगे। जो है LDR ने जो सेंस किया है वो जो एंगल वो इसके अंदर जो LDR सेंसर जो इस्तेमाल किए, जो LDR 1 है जो उसका कनेक्शन हमारे माइक्रो आर्डिनो के अंदर A1 में दिया गया है, और हमारे LDR सेंसर सेकंड है उसका कनेक्शन LDR A2 में दिया गया है। और इसके अंदर हमारे एक सर्वो मोटर है जो हमारे प्लेट का है जो रोटेशन है वो चेंज कराता रहता है, उसका कनेक्शन -9 के अंदर आर्डिनो के अंदर दिया गया है। जब हमारा जो सोलर पे सेंस करेगा हमारे आर्डिनो तो वो कनेक्शन A1 और A0 को देगा, और उधर से जो हमारा आउटपुट निकलेगा जो -9 से तो वो हमारे सर्वो मोटर को जाएगा। तो उस एंगल से हमारा सर्वो मोटर अपना एंगल डिसाइड करेगा, तो उस एंगल पर हमारी जो सोलर पैनल है वो रोटेट हो जाएगी और मैक्सिमम रेस को कैप्चर करेगी। और जो रेस कैप्चर और एनर्जी कैप्चर हुए वो एक बैटरी के अंदर स्टोर किया जाएगा।